Hello friends, in previous video we have completed lesson number 7 and today we will start with the exercise of this lesson. But before starting the exercise, I want to revise this chapter, what we have learned in this chapter. So in this chapter we have learned about the importance of water, that how water is important for us and it is essential for all living beings, and we use water for drinking and other household activities like washing, bathing, cooking, cleaning and so on. And it is also used for irrigation and generating electricity and for transport. And then we have discussed about the importance of water for animals. So how water is important for animals. So all animals drink water, and this help them in digesting their food. This is very important. Water help in the digestion of food. Secondly, the animal body produces waste material, and some of these waste get dissolved in water and are excreted in the form of urine. So these are the two main functions of water for the animals. तो एक तो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं फूड को, सेकेंडली वो वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं. And water is a habitat for many animals, as we have discussed, and there are aquatic animals which cannot live outside water. They only survive inside the water. पानी के अंदर ही रहते हैं और जैसे पानी के बाहर आते हैं वो मर जाते हैं. And the very important thing that we have learned is there are some animals like frog, turtle and crocodile that can live both on water and on land. जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं. So such animals are called amphibious animals. क्या बोलते हैं उनको? Amphibious animals. ऐसे एनिमल्स जो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फीबियस एनिमल्स. एंड देन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स. प्लांट्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? सो प्लांट्स नीड nutrients for their proper growth, and these nutrients get dissolved in water present in the soil. Soil से वो ऐसे nutrients नहीं ले सकती है. तो पहले तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स, एंड देन प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, और रूट्स की मदद से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को. पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स भी वो एब्जॉर्ब हो जाता है. सो दिस एब्जॉर्ब्ड वाटर ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स. And plants also need water for preparing their own food by the process of photosynthesis. तो photosynthesis जो process होता है जिसमें plants prepare करते हैं अपना food, उसमें भी water की ज़रूरत पड़ती है. So water is required for preparing their food also. And very important, plants require water for germination of seed. तो seed germination में भी water is very important. So these are the main role of water. That means वो nutrients absorb करने में help करते हैं. Secondly, food prepare करने में help करते हैं plants के लिए, और seed germination में भी help करते हैं. And it is also the habitat for many plants. As these are the examples: water lily, lotus, water hyacinth, duckweed, water lettuce, hydrilla. These are some examples of aquatic plants. So this is the importance of water for plants. And then we have discussed about the water availability, कि कितना available है water. That is 3/4 of the earth's surface is covered with water. And इतना सारा पानी होने के बावजूद only 3%, very small percentage, about 3% of it is practically used by humans in their daily life. 3% ही humans अपने daily life में उसका यूज कर पाते. So और इसमें से हमने पढ़ा था कि जो हमारा कुछ वाटर है वो ग्राउंड के नीचे
सीप हो जाता है, रस जाता है और वो ट्रैप हो जाता है अंडरग्राउंड रॉक्स के बीच में और इकट्ठा हो जाता है अंडर द ग्राउंड. एंड वी कैन take out that water with the help of hand pumps and tube wells. और bodies जो होती थी that we have discussed, step wells, जिसके चारों तरफ steps होते थे, उसे हम step well बोलते हैं. उससे भी हम ये ग्राउंड वाटर ले सकते थे. Then with the help of water wheel, रिहात एंड वेल, इनसे भी हम ग्राउंड वाटर निकालते थे. एंड नाउअडेज हम हैंड पम्प्स एंड इलेक्ट्रिक पंप्स यूज करते हैं ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए. सो ये जो ट्यूबवेल जो है कैसे वर्क करता है, इसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग पाइप होता है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है ग्राउंड में. और कहाँ तक, कब तक हम इंसर्ट करते हैं, जब तक कि वो ग्राउंड वाटर के लेवल के नीचे नहीं चले जाता. वो हमारा जो पाइप है वो ग्राउंड वाटर के लेवल के नीचे नहीं चले जाता, तब तक हम उसे इंसर्ट करते हैं. एंड देन water is drawn up by using hand pump or electric pump. And water supply हमारे घर में कैसे होती है, बिकॉज यू नो कि हमारे घर में तो वाटर अपने आप ही आता है. तो कैसे आता है, देयर इज अ वेल प्लान्ड वाटर सप्लाई सिस्टम. और उसमें क्या होता है कि आपका जो रिवर वाटर होता है उसको प्योरीफाई किया जाता है बहुत सारे सीरीज ऑफ प्रोसेसेस से, और उसको फिट बनाया जाता है ड्रिंकिंग के लिए. एंड देन हमारे घरों में और ऑफिसेज में वो पाइप्स के जो नेटवर्क हैं उनसे वो पहुंचता है. सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. सो फर्स्ट इज योर फिल-अप्स. सो water help in dash of food in animals. So we have just discussed कि जो water है वो animals को किस तरह से help करता है. So water help in dash of food, तो food को क्या करने में help करता है जो water है, animals में क्या help करता है, that is digestion of food. मैंने आपको बहुत बार explain किया है digestion ऑफ फूड इन एनिमल्स. जो वाटर है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है एनिमल्स. नेक्स्ट, एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड, वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन. ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, वाटर के बाहर नहीं रह सकते, वाटर के अंदर ही रहते हैं, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. जो भी चीज़ पानी के अंदर रहती है उसे हम एक्वेटिक बोलते हैं. अगर वो पानी के अंदर प्लांट्स की बात करें तो हम एक्वेटिक प्लांट्स, और अगर हम वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. सो एक्वेटिक एनिमल्स. नाउ एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. ऐसे एनिमल्स जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं. सो दैट वी हैव डिस्कस्ड, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियस एनिमल्स. दैट आर कॉल्ड एम्फीबियस एनिमल्स. सो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ पानी में रहते हैं, बाहर नहीं रह सकते, उनको एक्वेटिक एनिमल्स. और जो दोनों जगह रह सकते हैं, वाटर में भी और आउटसाइड द वाटर भी, उन्हें हम बोलते हैं एम्फीबियस एनिमल्स. नेक्स्ट इज वाटर trapped between underground rocks. So we have just discussed कि वो जो water है वो that seeps under the ground and trapped between the underground rocks. ऐसे water को हम क्या बोलते हैं? That is called ground water. That is called ground water. So and dash are aquatic plants. So we have just discussed about the many types of aquatic plants. So you have to name only two. So any two you can write. So बहुत सारे हमने अभी पीछे डिस्कस किए हैं, तो आपने सिर्फ कितने लिखने, 2 लिखने. तो मोस्ट कॉमन इज लोटस. सो लोटस एक हो गया. एंड अनदर वन आप कुछ भी लिख सकते हैं, वाटर लिली भी लिख सकते हैं,
और डकवीट भी लिख सकते हैं, वाटर हाइसिंथ एंड एनी अदर एक्वेटिक प्लांट. सो यहाँ पर हम डकवीट लिख लेते हैं, डकवीट. और यू कैन राइट एनी टू, आपकी मर्जी है, आप कोई भी टू लिख सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यही लिखने हैं, आप कोई भी टू एक्वेटिक प्लांट्स लिख सकते हैं. So next is your true false and MCQs that we will discuss in the next video. Thank you.